These rays are strongly absorbed by glass. They can penetrate through thick columns of fog, mist, and cloud cover. Now, what are the properties? As I said, like microwave, even when infrared rays falls on some object, it produces a heat. Okay. Next is it is strongly means it is penetrable. It is strongly absorbed by the glasses. If you put a glass in the path of the infrared rays, the glass will absorb the infrared rays. Now they can penetrate through thick columns of fog, mist, and cloud cover. Like gases, they can easily penetrate. That is what they want to say. Okay, go ahead with the uses. Uses: used in remote sensing, used in diagnosis of superficial tumors and varicose veins, used to cure infantile paralysis and to treat sprains, dislocations, and fractures. They are used in solar water heaters and cookers. Special infrared photographs of the body called thermograms can reveal diseased organs because these parts radiate less heat than the healthy organs. Infrared binoculars and thermal imaging cameras are used in military applications for night vision, used to keep greenhouse warm, used in remote controls of TV, VCR, etc. As you can see the uses, there are many medical appliances. There are many medical techniques in which infrared rays are used for detecting the tumors, for detecting the veins which are not working, for detecting the organs which are not proper, means which are not healthy. So because as it is saying that the healthy organs radiate more heat energy as compared to the diseased organ. So by using these techniques, you can use infrared rays for detecting the problems inside the body. Go ahead with visible light. Visible light. It is the most familiar form of electromagnetic waves. These waves are detected by human eye. Therefore, this wavelength range is called the visible light. This visible light is emitted due to atomic excitations. Now, see, this kind of waves are easily detectable by the human eye, as I have already discussed. And you have also studied from the basic standards that from 400 nanometer to 800 nanometer, you can easily observe the material. Actually, it is 300 nanometer to 700 nanometer, where 700 nanometer is the wavelength of your red light. Okay. So, and this is all because this is all created, it is all because of the atomic excitation. Means when electrons jump from one orbit to another orbit, they emit certain kind of energy, and the energy, the waves they create when they jump from one orbit to another orbit comes have a wavelength which is between say 300 nanometer to 700 nanometer, and that becomes visible for you. Go ahead. Properties. Different wavelength give rise to different colors. These are given in table 13.2. Visible light emitted or reflected from objects around us provides us information about those objects and hence about the surroundings. Go ahead with ultraviolet rays. Ultraviolet rays. Ultraviolet rays were discovered by J. Ritter in 1801. They can be produced by the mercury vapor lamp, electric spark, and carbon arc lamp. They can also be obtained by striking electrical discharge in hydrogen and xenon gas tubes. The sun is the most important natural source of ultraviolet rays, most of which are absorbed by ozone layer in Earth atmosphere. Okay. Now here ultraviolet rays, how they are created? They are produced by the mercury vapor lamp, electric spark, and the carbon arc lamp. Like if there is an electric spark, if you're creating an electric spark, you know what is electric spark. अगर दो wires को आप जब एक दूसरे से touch करते हो, there is a certain type of spark which is created. From those sparks, the rays which is created is your ultraviolet rays. They can be created with the help of a mercury lamp. They can be created with the help of a carbon lamp. This type of lamp, when you heat them, they create ultraviolet rays. लाइक अगर मर्क्यूरी से बना हुआ लैंप है, अगर आप उसको हीट प्रोड्यूस करवाओगे, आप उसके थ्रू करंट पास करोगे, तो वो अल्ट्रावायलेट रेस को क्रिएट करता है. Apart from this, the natural source, which is the sun, it creates lots of ultraviolet rays which is coming to the body. And you can also create ultraviolet rays by passing an electrical discharge, that is electrical current, through the हाइड्रोजन एंड जेनॉन गैस. अगर आप हाइड्रोजन और जेनॉन गैस के बीच में से इलेक्ट्रिक स्पार्क को क्रॉस करवाओगे, तो वहां पर हाइड्रोजन और जेनॉन गैस के साथ मिलकर भी अल्ट्रावायलेट रेज का क्रिएशन होता है. So these are some process in which ultraviolet rays are created. Mostly ultraviolet rays are received from the sunlight. This is the main source of creating a ultraviolet rays. Go ahead with the properties.
Properties. They produce fluorescence in certain materials such as phosphorus. They What is use fluorescence? Anyone? What is fluorescence? What is the meaning of fluorescence? मैम डार्क में ग्लो कर देना. Yes, it shines. Like your radium creates a fluorescence in the darkness, no? So Yes. it creates a fluorescence, it creates a light in the phosphorus, and this happens only in the dark places. Like everywhere you cannot observe the brightness. Why it is not called as brightness or why it is called as fluorescence? Because it is available only in the dark. So when you will observe the phosphor and if it is creating an ultraviolet rays, then you will observe that that phosphor is lighted up in the dark. Means it have its own fluorescence in the dark. This is how it goes. Go ahead. They cause photoelectric effect. They Now, cannot pass. wait. What is photoelectric effect? You are going to study in detailed about photoelectric effect. Photoelectric effect में क्या होता है? आपके जो metals होते हैं, जब आप उनके ऊपर ultraviolet rays गिराते हो, तो उनमें से electrons निकलकर भागना चालू करते हैं. So this effect is called as photoelectric effect. जब आप किसी metal पर कोई एक ray गिराते हो, especially ultraviolet ray, और उसमें से electron निकलकर भागना चालू करते हैं, so we say such effect as photoelectric effect. Go ahead. They cannot pass through glass but pass through quartz, fluoride, rock salt, etc. They possess the property of synthesizing vitamin D when skin is exposed to them. So they cannot pass through glass. Glass के through वो pass नहीं कर सकते ultraviolet rays. But उनको observe किया गया है. Quartz is a special type of crystal. Fluoride is a special type of crystal. Rock salt is your सेना नमक. ये सारी चीजों से इसका passing easily observe किया गया है कि आराम से penetrate हो जाता है. Now it is also observed कि अगर body को ultraviolet rays में रखा जाए, natural किसी भी ultraviolet rays में रखा जाए तो body vitamin D synthesize करती है, vitamin D बनाती है. Go ahead. Uses. Ultraviolet rays destroy germs and bacteria and hence they are used for sterilizing surgical instruments and for purification of water. Used in burglar Alarms. alarms and security systems. Used to distinguish real and fake gems. Used in analyzing of chemical compounds. Used to detect forgery. Forgery. Okay, it's forgery. Now, for what are the uses? First, it is used to synthesize your, sterilizing your instruments. जो भी instruments use करते हैं आपके operations वगैरह के लिए, उनके ऊपर ultraviolet rays को pass करके उनके bacteria मारे जाते हैं. Second, it is used in burglar alarms. Burglar alarms are those alarms जिसमें आप लोगों ने कभी-कभी observe किया होगा, like कहीं पर diamond वगैरह रखा है तो वहां पर जब कोई person cross करता है तो वो पर्सन को दिखता नहीं है कि वहां पर कोई लाइट है, तो वो जो लाइट वहां पर होती है दैट इज एन अल्ट्रावायलेट लाइट. तो जब वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वहां से वो जब क्रॉस करता है तो वो ब्लॉक कर देता है अल्ट्रावायलेट लाइट को. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना वहां पे यूज करते हैं कि जैसे ही वो क्रॉस करता है तो जब ब्लॉक हो जाती है अल्ट्रावायलेट लाइट तो वो मेटल जिस पे वो गिर रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा होता है, वो मेटल ब्लॉक हो जाता है. वो मेटल पे अल्ट्रावायलेट लाइट गिरना ब्लॉक हो जाती है और फिर अलार्म बजना चालू कर देता है. So this is how it is used for security system. Now it is also used for detecting the difference between your fake gem and real gem. Gem is what I can say, it is crystal which is very costly. Okay, ये ऐसे crystals, gems are those crystals which are very costly. तो कौन सा फेक है और कौन सा रियल है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज केमिकल कंपाउंड्स के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं. और लास्ट इज इट इज यूज टू डिटेक्ट फॉर्गरी. फॉर्गरी का मतलब होता है चीट करना, किसी तरीके की चीटिंग करना. तो किसी चीज में अगर स्मगलिंग या चीटिंग हो रही है तो वहां पर उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर जो जीन्स है वो कौन सा रियल है कौन सा फेक है, जब वो आपके कंट्री से दूसरे कंट्री में पास हो रहा है या किसी कंट्री से आपकी कंट्री ने खरीदा है, तो उसमें चीटिंग को बचाने के लिए अल्ट्रावायलेट रेस का यूज किया जाता है टू फाइंड आउट कि वेदर वो खराब, मतलब वो चीजें बेकार रियल है या फेक है. सो अगर रियल होंगी तो वो अच्छे से रेडिएशन पास करेंगे, अगर फेक होंगी तो वो अच्छे से उस लेवल का रेडिएशन पास नहीं करेंगी. तो इस तरीके से यू कैन यूज अल्ट्रावायलेट रेज इन मेनी पर्पसेस. एनी डाउट टिल हियर? Students, you have some doubt over here? No. Share out. No. No. Okay, go ahead with X-rays.
X-rays. German physicist W.C. Röntgen discovered X-rays in 1895 while studying cathode rays, which is a stream of electrons emitted by the cathode in a vacuum tube. X-rays are also called Röntgen rays. X-rays are produced when cathode rays are suddenly stopped by an obstacle. Now, how these X-rays are created? Actually, these X-rays are stream of electrons. There is a gas of electrons, many electrons passing together. Okay. Now, these electrons are, how these electrons are created? They are created with the cathode inside the vacuum system. आपके वैक्यूम सिस्टम में एक कैथोड रख दिया जाएगा और वो कैथोड जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को, जब आप उसको एक्साइट करोगे उस कैथोड को, तो उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस और वो जाकर स्ट्राइक करेंगे टू द जो भी मटेरियल बीच में आएगा उस पे. नाउ इवन हाउ दिस कैथोड रेज क्रिएट एन एक्सरे, वो भी कैसे किया जाता है, इसका एक्साइटेशन कैसे किया जाता है. कैथोड रे को काफी जोर से मूव किया जाता है, रोटेट किया जाता है, और रोटेट करने पर अगर बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ रहा है तो वो ऑब्स्टेकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है कैथोड रे में से. सो दिस इज हाउ द एक्सरेज आर मेड. ओके, देयर इज अ वास्ट फिनोमिना है एक्सरे बनाने का, उससे भी बड़ा फिनोमिना है. ये काफी शॉर्ट में बताया कि इन शॉर्ट आपको पता हो कि कैथोड रे से निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही एक्सरे को रिजल्ट करते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, जस्ट गो अहेड. Properties. They are high energy electromagnetic wave. They are not deflected by electric and magnetic fields. X-rays ionize the gases through which they pass. They have high penetrating power. They overdose. Their overdose can kill living plant and animal dose tissues and hence are harmful. Okay, so you know that this X-rays are used for many purposes. आपने भी काफी बार सुना होगा कि एक्सरे निकालने जा रहे हैं या एक्सरे करने जा रहे हैं. सबसे बेस्ट पार्ट एक्सरे की ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से रिफ्लेक्ट नहीं होते. मतलब अगर बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर सकता है ना मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर सकता है, वो इजिली आराम से बाहर निकल जाता है. तीसरी बात ये कि जब वो किसी गैस से पास होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी एलिमेंट का गैस है जैसे कि हीलियम गैस है या हाइड्रोजन गैस है, तो जब वो उनके अंदर से पास होते हैं तो वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को या उनके एटम्स को आयनाइज करते हुए निकलते हैं. आयनाइज का मतलब आपको पता होना चाहिए, वो उनके ऊपर चार्जेस क्रिएट कर देते हैं. सो दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, बॉडी में इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं. और अगर ज्यादा आप एक्सरे को एक्सपोज हो रहे हो बार बार तो they can kill plant and animals as well. So as this is how it goes, it cannot be deflected or it cannot be attracted by electric field and magnetic field. They have a high penetrating power. When they passes through the gas के जो molecules है, gas के जो atoms है, वो उनके ऊपर charge create करता हुआ आगे बढ़ता है. So this is how it goes. Any doubt till you? No. No. Okay. Go ahead with the uses. Uses. Useful in the study of structure of crystals. X-ray photographs are useful to detect bone fracture. X-rays have many other medicinal uses as CT scan. X-rays are used to detect flaws or cracks in metals. X-rays are these are used for detection of explosive opium, etc. Okay. What is opium? Do you people know what is opium? Find out what is opium for the next time. So X-rays are used for detecting the cracks in your bones and structures of your body. They are also used for finding out the cracks in the crystals which has been which is supposed to be exposed from one export from one country to another country. And they have many medicinal uses also that you all know. For example, is CT scan. So these are the some medical. Mostly X-rays का जो बहुत अच्छा use है वो detection के लिए बहुत अच्छा माना जाता है for underlying diseases and of course the crystals which you are going to export from one country to another country. Wait for the gamma rays. Gamma rays. Discovered by P. Villard in 1900, gamma rays are emitted from the nuclei of some radioactive elements such as uranium, radium, etc. Go ahead. Now, okay, wait. Now, gamma rays, how these gamma rays are created? They are created from radioactive elements. You know about what is radioactive element? Do you people know about it? Yes. Nucleus radiation emit करते हैं. Yes, radioactive elements ऐसे elements होते हैं जो continuously अपनी body से एक amount का radiation release करते रहते हैं. For example, uranium is a radioactive element. Okay, so
ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं अगर एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि ये एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि ये कंटिन्यूसली एमिशन करते रहते हैं एंड मतलब इनको स्टॉप नहीं कर सकते आप इनका रेडिएशन। ऐसा Yes. कभी नहीं होगा कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट खत्म हो गया, मर गया। इनकी लाइफ बहुत बड़ी होती है। मतलब अगर किसी के बॉडी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट चला गया तो वो ऐसा होगा कि वो कंटिन्यूसली बॉडी में रेडिएट करता रहेगा और पर्सन उसकी वजह से डेथ हो जाएगी पर्सन की। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ काम करना एक बहुत मतलब बहुत ही बड़ी बात है। द पर्सन हु हैव डिटेक्टेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो खुद उसी रीजन से मर गया फ्रॉम एक्सपोजिंग फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मैरी क्यूरी वाज द वन हु वर्कड विद द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स and she got Nobel Prize with for radioactive elements. She was the one who started with working with radioactive elements. उनकी पूरी फैमिली ही radioactive elements के एक्सपोजर से उनकी कहीं ना कहीं डेथ हुई है। So this elements working with these elements is very dangerous. इनके थ्रू जो रेस क्रिएट होते हैं दे आर गैमा रेस। इनका हालांकि गैमा रेस का यूज काफी जगहों पर किया जाता है, बट पर्टिकुलरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बॉडी में होना या बॉडी का कंटिन्यूसली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को एक्सपोज करना इज नॉट गुड। गो अहेड। Properties: they are highest energy electromagnetic waves, energy rays from kilo electron volt to giga electron volt. They are highly penetrating, they have a small ionizing power, they kill living cells. ओके नाउ दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, मतलब बॉडी में बहुत अच्छे से आराम से पेनिट्रेट कर जाते हैं। एज आई सेड कि बहुत लोग जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के साथ काम करते हैं दे डाई बिकॉज ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बिकॉज इट पेनिट्रेट्स इनसाइड द बॉडी इजीली। नेक्स्ट इज दे डू नॉट आयनाइज व्हेन दे पासेस थ्रू द गैस। उनका ऐसा कोई फंडा नहीं है कि वो गैस के थ्रू पास होंगे तो चार्जेस क्रिएट कर देंगे। क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करते हैं गैमा रेस। हाँ ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करता है, बोल सकते हैं। See, they are electromagnetic waves only, ना? Electromagnetic waves का तो speed ही speed of light है। Okay, now they kills the living cell. As I said कि penetration अच्छा नहीं है अगर body में। Why Hiroshima Nagasaki still facing the problem? Because वहाँ पे जो बम फेंका गया था that was radioactive one. मैंने आप लोगों को अगर याद हो आपको, मैंने नहीं आपको नहीं पढ़ाया। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है about the new uranium chain in your science 2 का yes पढ़ा है। चैप्टर में Yes, आपको शायद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में nuclear पढ़ाया गया। reactors, yes. So these things are quite like why Hiroshima Nagasaki of Japan is suffering still because उनके ऊपर जो बम फेंका गया that was made from radioactive element. So आज भी like maternity rate तो काफी कम हो गई है but still people are suffering from bone diseases, people are suffering from organ diseases. It is all because कि वहां पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का बम फेंका गया उसका इफेक्ट आज भी उस पर्टिकुलर एरिया में है। ठीक है, एंड दैट इज ओनली द रीजन कि जापान आज तक अमेरिका को माफ नहीं कर पाया क्योंकि उनका उस दिन का किया हुआ वॉर आज तक पब्लिक वहां पे फेस कर रही है। ओके शेरनोबिल में भी होता है। हाँ शेरनोबिल राइट। सो there is no trade in between America and Japan. This is the reason they don't purchase anything from America and they don't trade anything from America. No people go to America for studying something. मतलब बहुत रेयर लोग ही होंगे जो जाते हैं। मोस्टली America and Japan don't have any good relation with themselves. Okay, go ahead with the uses. Use as insecticides, disinfection for wheat and flour, used for food preservation, used in radiotherapy for the treatment of cancer and tumor. They are used to produce nuclear reactions. Okay, so these are the some uses. They are used for disinfections of your wheat वगैरह में पास किया जाता है कि वहां पर अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो ठीक हो जाए। यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, इसीलिए बोलते हैं कि जो नेचुरली अवेलेबल फ्रूट्स है वही खाना इज बेटर। मोस्टली फूड प्रिजर्वेशन में गैमा रेज का काफी यूज किया जाता है, तो ये प्रिजर्व्ड फूड खाना इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। दैट यू शुड कीप इट इन माइंड। लाइक हम लोगों को ऐसा लगता है कि वाओ ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल फॉर 12 months एंड दैट इज सो लकी ऑफ अस। नो, इट इज नॉट गुड फॉर अस। हमारे जो पहले के लोग थे जो खा रहे थे जो जी रहे थे, अब लोगों को वो रियलाइज भी हो रहा है कि दैट इज ओनली द वे टू लीव अ हेल्दी लाइफ। आज हम ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं कि आज हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग भी नहीं है कि हम एक वायरस को अपनी बॉडी में सस्टेन कर सकते। पीपल हैव सफर्ड अ लॉट इन देयर लास्ट डेज। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि ये प्रिजर्व्ड फूड खाना या प्रिजर्व्ड चीजें खाना इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ एनीमोर। डोंट प्रीफर द फ्रूट्स व्हिच आर प्रिजर्व्ड।
eat the fruits which are seasonal. Don't go for the fruits जो कि मतलब ठीक है 12 months हम लोग यहाँ पर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहां से हम लोग परचेस करते हैं. Those things are not good for the health. Purchase the things which are there. लोगों को ऐसा लगता है कि मॉल्स में बहुत सेफ्टी है, वो लोग जो स्टोर करके रख रहे हैं वो बहुत क्लीन एरिया है, but I can say they are trying to protect their things with the help of ultraviolet rays and different kinds of electromagnetic waves. So instead of purchasing from the malls, please purchase it from the vendors which are sitting on the side of the roads. उनका तो तुम पानी से साफ कर दोगे तो साफ हो जाएगा, बट मॉल्स का ऐसा है कि they have spreaded electromagnetic waves on those things to preserve it for long days, and that is not, सामने से it is being very healthy, but for body it is not at all healthy. So purchasing fruits, purchasing vegetables from packed condition from the malls is not a good idea according to the science, according to me. So that is, of course, that is your point of view from where you want to purchase and from where you want to eat. But the best part is you should always try for those fruits and vegetables which are seasonal and which are being like, which you can get on the side of the roads instead of going ahead with the malls. So purchasing packed foods are not good for anyone because they are preserved with the help of such rays. And you know that थोड़ा थोड़ा करके भी खाया तो हमारी बॉडी में कितने सारे रेज एंटर कर रहे हैं. Apart from that, we are continuously in contact with the electrical appliances. So of course, the waves which are creating from that is also penetrating inside our body. So why people are suffering from cancer type of diseases? This is only the reason that continuously we people are being exposed with so many waves which are passing from our body. हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली, मैं आपसे फोन पे बात कर रही हूँ, आप लोग रेडियो वेव्स ऑब्जर्व कर रहे हो, हम लोग कंटिन्यूसली ऐसी चीजें खा रहे हैं जो प्रिजर्व्ड है, जिसके ऊपर रेडिएशन हुआ है. सो ये सारी चीजें ऑब्जर्व, ये सारी चीजें कहाँ जा रही है? दे आर एंटरिंग इनसाइड अवर बॉडी एंड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीजेस and many underlying diseases which cannot be resolved in a small amount. Like कि ठीक है हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते. सर्दी खांसी नहीं हो रही है लोगों को ऐसा कुछ हो रहा है जो कि उनके लाइफ के लिए हैक बनता जा रहा है. सो आई थिंक इंडिया का जो पुराना कल्चर था, लिविंग इन अ नेचुरल वर्ल्ड, लिविंग विथ सो मेनी प्लांट्स, that is very very important, and that is what the requirement of life anymore. Okay, go ahead with, okay, now next we are going to start with the propagation of electromagnetic waves. See students, keep it in mind, you people are the youth of the country. abhi aap log, you people are working on yourself to create a future of you people. Okay, so I would like to suggest that after seeing so many things in your this particular situation 2020 and 2021, I think people should understand that what is the importance of going with the natural things instead of working with these waves. Okay, इंडिया ने इतना, इंडिया या बहुत सी कंट्रीज ने इतना डेवलपमेंट कर लिया कि नाउ वी आर वर्किंग ऑन 5G, वी आर वर्किंग ऑन 6G. But again, still I'm saying, what is the need of working on 5G and 6G if you cannot live a healthy life? अगर आपके पास एक हेल्दी लाइफ नहीं है तो आपके पास 5G हो, 6G हो, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हो, नए नए टाइप के कंप्यूटर्स हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग दोस अप्लायंसेस? आज के टाइम में अगर कोई बीमार है तो उसको आप एप्पल का कंप्यूटर पकड़ा दोगे तो भी वो खुश नहीं रहेगा उसको लेकर, बिकॉज हेल्थ इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू सजेस्ट कि प्लीज ट्राई टू लिव एन हेल्दी लाइफ. प्रिजर्व चीजों से थोड़ा दूर रहो, वेव्स से जितना कम कांटेक्ट में रह सकते हो रहो, और हेल्दी फूड खाओ सो दैट यू कैन बी वेरी हेल्दी. कि अगर कोई डिजीज किसी को अप्रोच कर भी रही है तो आपका बॉडी इतना हेल्दी हो कि आप उसके अगेंस्ट लड़ सको. ओके, अवर ओल्ड पीपल, हमारे दादाजी के दादाजी एंड ऑल, दिस पीपल हैव लिव्ड देयर लाइफ फॉर 100+ years, 90+ years, और आज हम लोग 40, 50, 60 में भी हमारी हालत एकदम खराब हो जा रही. सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी आर लिविंग. हमको लग रहा है कि वाओ, अवर टेक्नोलॉजी हैज वेंट टू अ वेरी ग्रेट प्लेस, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या हम लोग मासलेस कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं. बट ये मासलेस कम्युनिकेशन से तो अच्छा मुझे लगता है टेलीफोनिक था, कि कम से कम वो वेव्स सिर्फ उस वायर के थ्रू वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रही थी. आज ये मासलेस कम्युनिकेशन का सारा वेव्स हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करके जा रहा है, और हमारी बॉडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है कि मीन्स व्हाट टू से अहेड. ठीक है, इसके बिना जी भी नहीं सकते, और इसकी वजह से जो हो रहा है वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते. सो आई जस्ट वांट टू से कि वर्क एज इफ कि ह्यूमन हेल्थ बीच में ना आए. सो दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. Okay, so next is we are going to discuss about the propagation of electromagnetic waves.
Before going ahead with the propagation of electromagnetic waves, I would like to explain you something with the help of book. तो जरा ध्यान से देखो what I'm doing. Let me set my camera. Can you people see my notebook? Yes. Yeah. Okay. Now let's discuss about the propagation of electric propagate. See, simple सा फंडा है कि when I'm speaking here, अगर ये जो मोबाइल फोन या जूम एक वे नहीं होता आप तक मेरा जो भी वॉइस है वो पहुंचाने का, तो मेरे कुछ बोलने के बाद मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा जाती तो कहाँ तक जाती? अगर मैं बहुत जोर से चिल्लाकर पढ़ा रही हूँ तो भी वो कहाँ तक जाएगी? लाइक इफ आई एम लिविंग ऑन द थर्ड फ्लोर, इट माइट हैव वेंट टू टिल द फर्स्ट फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर, इतना ही आवाज जा सकती है मेरी, बट स्टिल इट इज रीचिंग टू योर ओन प्लेसेस. हर जगह लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हैं और मेरा जो भी whatever I'm speaking that is coming to your own places, to your home. और तुम लोग कहाँ बैठे हो, मेरे घर से तुम्हारे घर का कितना डिस्टेंस है, that I don't know. चलो ठीक है, ये तो काफी पास की बात हो गई. People are talking from India to America. People are talking from for a long distances. How is it possible? क्योंकि हमारे जो वेव्स हैं, हम जो वेव्स क्रिएट करते हैं, उनकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इतने दूर दूर तक जाए. सो what we used to do कि हमारी वेव्स इतनी दूर तक जाती है, वो चीज समझो. हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझाती हूँ. मॉड्यूलेशन मतलब मॉडिफाई करना. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? क्या किया जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में? ये प्रोपगेशन में आपका सिर्फ एक से दो ही चीज इंपॉर्टेंट है. दैट इज, पहली बात, कितने वेव से वेव को प्रोपगेट किया जाता है वो, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये, और तीसरा है कि एंटीनास का क्या रोल है ये. सो तीन चीजें प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंपॉर्टेंट है. वो भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एंटीना का लेंथ इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई चीज मोस्टली एंट्रेंस में नहीं पूछी जाती है. सो एंटीना के लेंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आप समझ जाओगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन, और वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं. मतलब अगर आपने एंटीनास के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो वो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं. क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये एप्लीकेशन में पढ़ी जाती है. सो अभी आप एप्लीकेशन में जब आप इस फील्ड में घुसोगे, लाइक आप जब इन फील्ड में इंजीनियरिंग करोगे, तो आपको अपने आप इन सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी. तो अभी फॉर एंट्रेंस लेवल और फॉर 12th लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये फैक्टर. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से कुछ बोला, बोलने के बाद दिस इज द वेव विच आई क्रिएटेड, ये वेव मेरा क्रिएट किया हुआ है. सो इन 1 सेकेंड, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 1 सेकेंड में मैंने कितने वेव्स क्रिएट किए हैं? आई हैव क्रिएटेड 2 वेव्स. सो फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2 hertz. यस, द फ्रीक्वेंसी इज 2 hertz. ठीक है. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ क्रस्ट एंड नंबर ऑफ ट्रफ. तो यहाँ पे ये एक हो गया, यहाँ पे ये दूसरा हो गया. ठीक है. नाउ माय फ्रीक्वेंसी इज ओनली 2 hertz. आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं एनर्जी है. अब ये जो 2 hertz की फ्रीक्वेंसी है, ये 2 hertz की फ्रीक्वेंसी दूर तक नहीं जा सकती. तो हम करते क्या है, हम इस वेव को, लो फ्रीक्वेंसी वेव को एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे बिठा देते हैं. आपका जो
सिग्नल ऑपरेटर है ना, जैसे कि आप जियो यूज कर रहे हो या आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हो, वो करते क्या है? अब जो मैं यहाँ से जो भी बोल रही हूँ ना, वो जूम का सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी मेरी लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में कहीं ना कहीं मिडल में बिठा दे रहा है। मतलब इनका जो वेव है हाई फ्रिक्वेंसी वेव, वो मेरी लो फ्रिक्वेंसी वेव के लिए कैरियर का काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कैरियर वेव। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझा व्हाट आई सेड? Yes. मेरा जो ये वेव है, इस वेव को मेरे जूम के प्लेटफॉर्म ने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे बिठा दिया, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। सो जब उसने इस हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे इसको बिठा दिया, अब प्रोसेस होता कैसा है वो समझो। मैंने जैसे ही बोला उसको हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे बिठा दिया उन्होंने। ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है, समझो वो इंफॉर्मेशन उन लोगों ने यहाँ पे करके रखा है, ये पॉइंट पे, ये मेरा इंफॉर्मेशन। या हाई फ्रीक्वेंसी वेव मेरे इंफॉर्मेशन को लेकर जहां पर तक जाना है वहां पर जाएगी। वहां पर जाने के बाद वो, ये जो आपके मोबाइल के अंदर ये सारे सिस्टम सेव्ड होता है, आपका मोबाइल क्या करेगा, जो मेन इंफॉर्मेशन है ना, जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको निकालेगा और बाकी के जो वेव्स है वो उसको रिमूव करके सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देगा। कुछ समझा मैंने क्या कहा? समझा? Yes. सो यहाँ से ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव गई है मेरे फोन से, और आपके फोन ने क्या किया, जो सिर्फ जो मेन इंफॉर्मेशन है वो निकाल कर वो आप तक पहुंचाया, और बाकी के जो वेव्स है उनको उसने डिस्कार्ड कर दिया। अब अगर नेटवर्क इशू होता है तो होता क्या है, ये प्रॉपरली निकाल नहीं पाते हम। जब ये प्रॉपरली निकाल नहीं पाते तो आपको वॉइस क्लियर नहीं जाती है। दिस इज हाउ इट गोस। समझ में आया? सो ये सारी चीजें ऑफ कोर्स नेट के थ्रू ही हो रही है, या बाय द सिस्टम, बीच में जो प्लेटफॉर्म है वो ये सारी चीजें कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझा? समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो। Yes. Yes. यहाँ से कैरियर वेव पे हम अपना इंफॉर्मेशन बिठाते हैं। कैरियर वेव आपके मोबाइल तक वो इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है। फिर आपका जो मोबाइल का सिस्टम है, जिस प्लेटफॉर्म से आप बात कर रहे हो, लाइक आप जूम से बात कर रहे हो, तो जूम का जो सिस्टम है वो क्या करता है, आपके मोबाइल में एंटर करने के बाद वो जूम का सिस्टम जो आपका इंफॉर्मेशन है उसको बाहर निकालता है और बाकी सारी कैरियर वेव्स को वो उड़ा देता है। सो यू गेट दिस वेव्स विथ योरसेल्फ। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर स्लो बोल रही हूँ पर आप फटाफट जाती है। इट इज ऑल अगेन बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यू। लाइक प्लेटफॉर्म ने तो फटाफट सारे वेव्स निकाल दिए, बट वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में प्रॉपरली नहीं जा पा रहा है, तो वो क्या करता है, एक ही साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन को भेज देता है और वो सारी चीजें कोलैब होकर आपके पास आती है। सो इन शॉर्ट इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बोलना था कि आपके लो फ्रीक्वेंसी वेव को हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर बिठाकर इंफॉर्मेशन को आगे भेजा जाता है, सो दैट चीजें दूर दूर तक जा सके। समझ में आया व्हाट आई सेड? क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? समझा आपको मैंने क्या Yes. कहा? Yes. Yes. आप जो मोबाइल फोन्स टाइप करते हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करते हो। लाइक आप कोई पर्सन यहाँ से कॉल कर रहा है दूसरे पर्सन को, तो जब आपने एक नंबर टाइप किया तो वो जो नंबर होता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी लोकेट करता है कि भाई आपको आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट कर कहाँ पर खत्म करनी है। तो वो जो नंबर का कनेक्शन होता है ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी का डेस्टिनेशन निकालता है कि भाई मेरा जो वेव निकलने वाला है वो यहाँ से जाकर कहाँ तक जाने वाला है। बीच में हैकिंग काफी ज्यादा हुई थी कि ठीक है फोन हैक्ड हो जा रहे हैं, सिग्नल्स हैक्ड हो जा रहे हैं। वो यही करता है कि ये जो आपका लोकेशन है, आपकी फ्रीक्वेंसी का लोकेशन यहाँ ना रखकर वो हैक कर कहीं और रखते हैं अपने सिस्टम में, या फिर बीच में ब्लॉक कर देते हैं। तो आपका जो भी फ्रीक्वेंसी है वो अपने लोकेशन पे ना जाकर किसी और के साथ भी शेयर हो जाता है। मतलब इट इज गोइंग टू योर लोकेशन ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू द सेकेंड लोकेशन जहां से उसकी हैकिंग हुई है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट ये सारी चीजें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का गेम है। फ्रीक्वेंसीज के हेल्प से और वेवलेंथ के हेल्प से ये सारी चीजें की जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर विद द पार्ट? Yes. Yes. तो कैरियर वेव पे बिठाकर आपके मैसेज वेव को भेजा जाता है, और वो जब वो आपके सिस्टम के पास जहां पर आपको भेजना आता है वहां पहुंचता है, तो कैरियर वेव में से
मैसेज वेव को निकाल लिया जाता है और कैरियर वेव को रिलीज कर दिया जाता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ इट गोस. ओके, नेक्स्ट इज आई वांट टू शेयर कैरियर. ओके, समटाइम्स लाइक आप फोन कहीं और लगा रहे हो और कनेक्शन कहीं और हो गया. दिस ऑल्सो हैपेंस. पहले काफी ज्यादा होता था कि हम कॉल कहीं और लगा रहे हैं, नंबर वही है बट फ्रीक्वेंसी का डेस्टिनेशन कहीं और लग गया. ऐसा होता था. और अभी भी कुछ मोबाइल फोन्स वगैरह अगर खराब हो जाते हैं तो वो चीज होती है. तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेस्टिनेशन. अगर फ्रीक्वेंसी कहीं और सेट हो गई है तो फिर आपका फोन वहां लग जाता है. सो दिस इज हाउ इट गोस. ओके, ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द प्रोपगेशन. कोई और ट्राई करेगा? कौन ट्राई करेगा? ठीक है, तेजस का नेटवर्क भी काफी अच्छा है. तेजस तुम्हें रीड करो. Propagation of electromagnetic waves. You must have seen a TV antenna used to receive the TV signals from the transmitting tower from a satellite. In communication using radio waves, an antenna in the transmitter radiates the electromagnetic wave, which travel through the space, and reach the receiving antenna at the other end. As the electromagnetic wave travel away from the transmitter, the strength of the wave keeps on decreasing. Several factors influence the propagation of electromagnetic wave and the path they follow. It is important to understand the composition of the Earth's atmosphere as it plays a vital role in the propagation of electromagnetic waves. Different layers of Earth atmosphere are shown in table figure 13.3. Wait. Now see, antennas and satellites plays a great role when you are talking about the broadcasting. आपको पता है like किसी एक पोजीशन पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, वहां से वो वेव्स वहां से रिसीव की जाती है. सैटेलाइट्स ट्रांसमीटर्स वहां से वो वेव्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो सैटेलाइट को पास करते हैं, सैटेलाइट उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है और देयर इज अ रिसीविंग एंटीना जो उसको रिसीव करता है और आपको दिखाता है. फॉर एग्जांपल, यू कैन वॉच टीवी सीरियल्स, you can watch many things on your TV. It is all because of the antennas you people have used. क्यों बीच में गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि केबल इज नॉट गुड, गो फॉर द डिश टीवीज, बिकॉज उससे स्पेसिफाइड एंटीनास हम यूज कर रहे थे और जो अनवांटेड वेव्स थी उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिश टीवी टाइप ऑफ एंटीनास. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. वहां से रिसीविंग एंटीना उसको रिसीव करता है, सैटेलाइट पे भेजता है, सैटेलाइट उसको वापस रिलीज करता है, रिसीविंग एंटीना उसको रिसीव करता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. बट व्हेन यू पास दिस वेव्स इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है एंड किस लेयर में कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए वेव का, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मतलब यहाँ से जब आपने एंटीना पे भेजा, यहाँ से जब आपने सैटेलाइट पे भेजा और सैटेलाइट जब रिटर्न उसको रिसीविंग एंटीना के पास भेज रहा है, तो बीच में जो एटमॉस्फेयर है, यू शुड नो दैट एटमॉस्फेयर में फ्री चार्जेस अवेलेबल है. तो अगर वो वेव्स फ्री चार्जेस को पास करके आ रही है तो वहां पर उनका स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा. पता चला आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है उसकी आधी इन्फॉर्मेशन तो लॉस हो गई, आधी इन्फॉर्मेशन खाली आपके घर तक पहुंच रही है. सो दैट इज नॉट अ गुड वे. सो यू शुड नो अबाउट द एटमॉस्फेयर कि भाई अगर कैसा एटमॉस्फेयर है तो आपको किस तरीके की वेव्स को भेजना या कितना स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है, सो दैट प्रॉपर्ली जो मैसेज कन्वे किया गया है वो इजिली हर जगह पे सेम अमाउंट में पहुंचे, ना कि वहां पर डिस्ट्रक्शन हो उस वेव का और आधा अधूरा एनर्जी लेकर वो वहां पर पहुंचे. लेट्स मूव अहेड. Different methods of propagation of electromagnetic waves are described below and are shown in figure 13.4. Okay, wait, Tejas. If you people have textbook, go to the page number 236. If you don't have textbook, you can observe it in my camp. Can you people see the figure which I am trying to show you? Yes. See, when I'm talking about, just look at this. The first layer above the Earth's surface is troposphere, in which we are living. It is still 20 kilometers. Above that, there is a stratosphere, which is more above 50 kilometers. Mesosphere, 85 kilometers. Thermosphere, it is 690 kilometers. And then last one is the exosphere. So this is the total, what I can say, layers of your Earth atmosphere. ठीक है. Passing through thermosphere is a big deal. अगर मतलब कोई भी चीज अर्थ में एंटर करने की कोशिश करती है तो, और अगर उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है तो वो जल जाएगी. आप जो शूटिंग स्टार्स देखते हो ना, द स्टार्स विच यू ऑब्जर्व, एक्चुअली दोज आर नॉट स्टार्स. वो एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं. जब हमारे अर्थ में वो एंटर करते हैं
तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो चार्जेस है, हमारे अर्थ के बीच में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, वो चार्ज पार्टिकल उस एस्ट्रॉइड को जला देते हैं एंड यू सी अ शाइनिंग स्टार टाइप ऑफ मटेरियल। सो अगर कोई भी चीज अर्थ में डायरेक्ट एंटर करने की कोशिश करेगी तो जल जाएगी। तो इसीलिए जब आपको अर्थ के बाहर किसी चीज को भेजना होता है या अर्थ के अंदर किसी चीज को लाना होता है तो उसको बहुत प्रोटेक्ट करके लाना पड़ता है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको जला देता है। Okay, do you know about the dog, the first dog which entered into the earth atmosphere और वो जल के मर गया? No. That was the first living organism which was sent into the space by the Russia. Do you people know the name of that dog? The first first living organism was your dog, जिसको भेजा गया था अर्थ में, अर्थ के बाहर, बट वो अर्थ के बाहर नहीं जा पाया और अर्थ एटमॉस्फेयर में ही जलकर मर गया, बिकॉज अर्थ एटमॉस्फेयर के चार्जेस बहुत ही हाईली आयनाइज्ड होते हैं और वो चीजों को जला देते हैं। एनीवन नोज द नेम ऑफ दैट डॉग? किसी को पता है? दैट वाज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको भेजा गया था अर्थ के बाहर। दैट डॉग वाज ल्यूका। यू कैन सर्च अबाउट हिम and you can find out कि क्या हुआ था। उसके बाद अमेरिका गॉट इन कॉम्पिटिशन, कह रहे भाई इन्होंने तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भेज दिया, अब हमें भेजना बहुत जरूरी है। सो दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन मून मिशन। ओके, सो ओके, they just go ahead with the different types of propagations. Ground surface wave. When a radio wave from a transmitting antenna propagates near surface of the earth so as to reach the receiving antenna, the wave propagation is called as ground wave or surface wave propagation. Now wait, just now first way to propagate a wave, is a ground wave propagation. ग्राउंड वेव मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वो वेव्स को सैटेलाइट पे नहीं भेजता, वो नीचे से ग्राउंड के हेल्प से वो प्रोपगेट करवाता है। सो जब वो ग्राउंड के वेव से प्रोपगेट करवाता है, ग्राउंड का हेल्प लेकर, आपके सरफेस का हेल्प लेकर जब वो प्रोपगेट करवाता है और रिसीविंग एंटीना तक आपका सिग्नल पहुंचाता है, तो ऐसे प्रोपगेशन को हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन बोलते हैं। हियर वी आर यूजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, as you can see in your diagrams if you people have, or I can show you the diagram. Can you people see the diagram? बना रहे। एक मिनट रुक जाओ। Can you see it now? Can you people see the diagram? Yes ma'am, थोड़ा blur है। थोड़ा blur है। Now is it okay? Yes. उनके लिए जिनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है, मैं उनके लिए ये शो कर रही हूँ। सी वी आर यूजिंग, यहाँ पर दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये ट्रांसमिट करने वाला एंटीना। यहाँ से वेव नीचे ग्राउंड पर गई, ग्राउंड से टकरा कर यहाँ पर कहीं पर रिसीविंग एंटीना होगा, वहां पर वो रिसीव हुई, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज योर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, जहाँ पर हम ग्राउंड का यूज करके वेव्स को प्रोपगेट करवाते हैं। बट प्रोपगेटिंग थ्रू ग्राउंड इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि वहां पर काफी लॉस हो जाता है एनर्जी का। सो पीपल मोस्टली डोंट प्रिफर दिस प्रोपगेशन। गो अहेड। In this mode, radio waves travel close to the surface of the earth and move along its curved surface for transmitter to receiver. The radio waves include currents in the ground and lose their energy by absorption. Therefore, the signal cannot be transmitted over large distances. Radio waves having frequency less than 2 megahertz in the medium frequency band and are transmitted by ground wave propagation. This is suitable for local broadcasting only. For TV or FM signals, very high frequency ground wave propagation cannot be used. नाउ ये जो आप लोग केबल एंड चैनल्स देखते हो ना, लाइक कि ये मेरा रीजन का केबल है, फॉर एग्जांपल तिसाई केबल। सो ये जो बेसिक लोकल चैनल्स होता है ना, उनके ही प्रोपगेशन के लिए मोस्टली ग्राउंड का यूज कर सकते हो, इस वे का यूज कर सकते हो। बाकी ये जो नेशनल टीवी के टेलीविजन के होते हैं या इंटरनेशनल होते हैं, उनके लिए आप ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का यूज नहीं कर सकते। तो लोकल ट्रांसमिशन के लिए मोस्टली ग्राउंड वेव का यूज किया जाता है, अदरवाइज इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू यूज अ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, क्योंकि वहां पर ग्राउंड में आपकी बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ करंट। जब आपका सिग्नल ग्राउंड को टच करता है तो करंट के फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी को वहीं पर लॉस कर देता है। So it's not a good idea to use a ground wave propagation for long distances, as I said earlier. Okay. Now do one thing.
I'm giving you 5 minutes. Just go through whatever I have taught you till now. Actually मुझे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ही देना था, but still start reading. रीड करना स्टार्ट करो. देखो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन तक किसी को कुछ डाउट है क्या? Switch on your cameras everyone. I want you people to see reading. Cameras on करो. अपने आप को नहीं दिखाओगे चलेगा, बट रीड करते हुए दिखने चाहिए. Start reading everyone. Start reading from different electromagnetic spectrum and then enter ground wave propagation. देखो किसी को कुछ डाउट है क्या? कोई वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो. This chapter is not that important as entrance point of view. Keep it in mind. Neither your 12th point of view. 12th से भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है इस चैप्टर का. हेलो मैम, बोलो. मुझे जैसे आपने बोला कि मॉल में का मतलब सब्जी वगैरह उसमें केमिकल डाला जाता है, तो फिर वैसे कपड़े के ऊपर केमिकल नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए. तो मिस कपड़े के ऊपर भी वही सेम चीज अप्लाई होगा ना? और उनके ऊपर ऐसा कोई रेडिएशन नहीं किया होता है, तो गंदा लगा भी है तो आप उसको पानी से साफ कर सकते हो. रेडिएशन तो नहीं साफ कर सकते. दैट इज द पार्ट. यस मिस. मीन्स ये बोल सकते हैं कि वर्किंग विथ न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज आर इज नॉट एट ऑल अ गुड पार्ट. की बहुत खुशी मिलनी चाहिए कि नहीं वी आर ईटिंग समथिंग फ्रॉम मॉल्स. वी आर ईटिंग समथिंग विच इज नॉट फ्रेश. दैट इज व्हाट आई कैन सी द मोस्ट. और अर्लियर डेज में तो अवर पीपल यूज टू एग्री. हमारी तो कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री है, सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट. एग्रीकल्चर अगर आपके घर में बेसिकली किया जा रहा है तो यू शुड रिस्पेक्ट एंड यू शुड बी प्राउडफुल दैट यू आर बिलोंगिंग टू द फैमिली जिनका एग्रीकल्चरिंग का कल्चर आज भी फॉलो हो रहा है. एंड यू शुड बी इन्वॉल्व इन दैट बीइंग अ फ्यूचर. ऐसा नहीं होना चाहिए अरे मैं तो साइंस पढ़ता हूँ मेरे को तो ये आता ही नहीं है. ये नहीं होना चाहिए बच्चों में. यू शुड ट्राई एवरीथिंग एंड यू शुड नो. और जो बेसिक कल्चर है वो तो कभी नहीं भूलना चाहिए मेरे हिसाब से. कुछ डाउट है तो पूछो. सागर पढ़ रहा है ना? यस मैम. मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है तुझे देख के.